detached from the parents, and they just go deeper in their expressions. And sometimes it happens as a parent, we are not able to judge what actually is happening with our child. So this can lead to the depression, and depression, as we know that it's dangerous for our students. So next is encourage open communication. So how we can overcome this challenge of cyberbullying? We can communicate to our students in open communications, because we know that generations gaps will be definitely there among us and our students. It will be there always. It is never going to be removed now. But the step we can take, or we can say the initiative which we can take is we can have open communications. Out of our lectures, we'll be giving 6 lectures or maybe 3 or 2 likewise. So out of that particular session, in a month we can have one particular session regarding that one only, discussing with the students how their days are going, what is happening around them, where are they going to the tuitions, how they are going. So these little communication, I believe, will help the students to have a friendly communication with the teachers. And definitely if they have communication with the teachers, so when we get the PTM, so we will share that particular things about their child to the parents as well, so that we both can work as a interface to our students. So next is report and block bullies. If something is happened, so we can suggest that report that particular platform or report that particular person as well, so that we can stop the bullying. And the last point is involve school counselors and parents. As I conveyed earlier also in the last point, so that we can communicate with the parents, and we can, if we are not able to, if we feel sometimes that we are not the right person to counsel a student, so we are always having a counselor inside the school, so we can guide them, we can suggest that these things are happening with this particular child, they can call, they can counsel that particular child, so that they have confidence to share their things, because generally we avoid to share our things with somebody. Next is protecting digital identity. So as we discussed in the last one, that how we can protect our digital identity. So very first thing is, which we should not do it, that is never share your personal information like your mobile phones and your addresses, and basically it's for schools, students, so it's a school name definitely. So next one is use avatars instead of real photographs. So I'm talking about this avatar in, you must remember, in the Ghibli art. And the third point is avoid clicking on unknown links. Unknown links, we know that it may contain suspicious or code, maybe code injection will be there into a server, which will lead to the loss of our important passwords and the keywords which we are using to encrypt our social accounts or our data also. So we should not click on unknown links, because if we click on unknown links, so chances are there they will install a malwares, or you can say viruses. It can also lead to the Trojan horses, which seems fruitful to us, seems beneficial for us, but at the back end they will hack our system or maybe build the backdoor as well. So the last point is teach students about privacy settings. So we already discussed that one, that we can guide up to this point for students, so that they can have ethical, we can say ethical steps towards the security or healthy habits to use the internet. Now we will watch our video. So that's a real world video example of showing the devastating yet instructive impact of cyber crimes on everyday people. So let's watch that. We're able to be a million shades of gray, depending on who's asking. If you ask my husband Dave, he'll tell you that I'm his loving wife Nancy. To my kids, I'm the best mom I can be, and their #1 fan. To the people around town, I'm probably just that woman they see at the grocery store. But to me, I like to think of myself as someone who makes the most of every opportunity. Shall I explain? Hello? Sir, we have a problem with our file server. Everything's locked. What do you mean everything's locked? Like, we can't get to the system, sir. All medical records, financial records, and patient information aren't accessible. Okay, I'm coming up. I'm getting an error message when I check my cell phone with my laptop. Other backup? How is it supposed to do like without backup? And the hospital are saying they can't get it. I can't run and turn my phone. Everything's done. Server issues. They get the weird thing.
really is. With cryptocurrency, the funds are sent via a randomly generated key code. The origin can be traced. How can we then trace it? What about the FBI? We're not paying this man. He's using a mass IP address. Communications are being routed through several proxies. It's really difficult to pinpoint. The FBI have been notified and they're on their way. Their time is of the essence. If we don't pay soon, they're threatening to permanently delete the data. What about the backups? We have this stuff backed up the wazoo. All backups are offshore. It takes several days to revert the files. The best thing to do is pay it, get everything back online, and let the feds run their investigation. The longer we're offline, the harder this breach hits our reputation. All right, I'm on it. All right, we're back online. That was Tom Stevens with sports, and now we're going down the bill with a very disturbing story about Penwell Healthcare. Investors are licking their wounds today after yesterday's data breach at Penwell Healthcare. CEO Bill Ramsey released a statement claiming that the situation is, quote, under control. But if the stock market's any indication, that isn't anything but the case. I think it's very upsetting, if I'm being honest. I think it shows utter lack of care and responsibility from people. It shows that they don't care about their investors or their stock. Coming, sweetie. So how was the video? So please use that. It was really disturbing and shocking because with a single click or with a single email, the whole company was shut down and they had to pay like $300,000 or something. Anyone out of you would like to say something regarding the video? Like what you watched, what you understood, and if you want to implement something in that. So, exactly. So there are some questions based on it. So let's discuss that also. So, what tactic did the attacker use? So I need everyone to answer that, or anyone out of you. So I'm handing over the mic to everyone. So please. The lady called Nancy used the information available online of that person and deceived him and asked for ransom. Amount to be paid. And then she said that if you pay that particular ransom amount within the duration, with a particular duration, only then you will be able to regain access to the particular organization website. Otherwise, it will not. And it also happens sometimes. The attackers who are asking for ransom amount, sometimes they give you the back access of it, and sometimes they erase all the data. If there is no assurity, then once paying the money, you will be able to regain the access of your company's organization or not. They keep on asking ransom every time, Yes. whenever they need it. Because they know that you're already they are already inside the system. They want that, yes, once you paid the money, they have the access to ask you again and again, because they know it. Once you paid the money and there is no codes that you will not pay on second time. So these things are there. So my next question is, how did the victim respond initially? जब उसको जो उसका ऑनर था, जब उसको पता चला कि दिस सॉर्ट ऑफ जो भी उनके साथ अटैक हो गया है या उनका जो डेटा बेस सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो उसने पहले कैसे रिएक्ट किया?
he got panic. He got panic, ma'am. Yes. Insecure. Yes. And it's happened generally जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हम उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हमारा माइंड उतनी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं जितने हम एक पीसफुल स्टेट में अपने माइंड को वर्क करवा सकते हैं। पैनिक सिचुएशन में हम थोड़ा पजल हो जाते हैं एंड वी वांट कि जैसे कैसे करके हमारा एक्सेस वापस आ जाए, हमारा जो अटैकर है उसको ज़्यादा एक्सेस ना कर पाए हमारे डेटा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what could have been done differently? What could have done differently? Yes, sir. This is the main question and expected solution there, if anybody has. So anyone out of you would like to answer this question? कि इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? Instead of getting panic, what other situation we can apply so that we should not get attacked by a ransom person? She is enjoying, you must have observed, she is moving around in the home, she is enjoying, she is just a housewife, and even she said that she intimated that if you ask my husband, she will say I'm his wife or whatever, and for the sons I'm their loving mother. So even the family of the particular hacker is not aware of what the particular lady is doing on. So, out of you, can anyone suggest me that what are the possible outcomes can be there to protect or safeguard the particular organization website? We can say. So, any suggestion out of you? नॉर्मली जब कोई ऐसा हैक करता है, वो जो डेटा वो चुराता है, वो उसी पर्सन से पैसे कमा सकता है। पहली चीज़, वो जनरली रॉ मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकता। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है, सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसने चुराया वो उसी से पैसे ले सकता है। तो एटलीस्ट ही कैन काम एंड मैनेज एज मच टाइम एज ही कैन। जितना ज़्यादा टाइम आप लोगे उसके लिए आप उतना ज़्यादा सोच सकोगे, प्लान कर सकोगे और अपना डिफेंस तैयार कर सकोगे। अगर आप इमीडिएट कोई भी एक्शन लेते हो, वो मोर और लेस आपके अगेंस्ट ही जाएगा। बिकॉज आई हैव फेस द सेम सिचुएशन एज समथिंग हैपेंस ओवर देयर। So how you overcome that situation? आई किल द टाइम। मैंने टाइम मांगा, वो बोले 15 मिनट में पैसे दो। मैंने कहा मेरे नहीं है, जो करना है कर लो। आई टेक 2 days। 2 दिन में मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। आपने जितने अकाउंट मतलब कॉन्टैक्ट थे सबको बोल दिया मेरा अकाउंट हैक किया गया, कोई मैसेज आए अटेंड मत करना, अगर अटेंड करो तो कोई पैसे मत देना, मान लेना कि मैंने नहीं भेजा, किसी ने कर लिया। सो दैट आई कन्विंस ऑल माई कॉन्टैक्ट दैट माई अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड और उससे जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको अटेंड ना करें। मैंने 50% पार्ट पहले तो वो क्लियर किया, फिर मैंने साइबर पुलिस में उसको कंप्लेंट किया। उसके बावजूद भी वो लोग रुके नहीं। दे स्टार्ट कॉलिंग मी प्रिटेंडिंग IG, SP, हायर रैंक ऑफिशियल्स। आई अगेन गो टू द पुलिस कि मैं अब इसको कैसे हैंडल करूँ। उन्होंने हमें बताया जो साइबर पुलिस थे कि भाई एक हायर रैंक ऑफिसर एक आम सिटीजन को क्यों फ़ोन करेगा। बोला आपको अगर दोबारा फ़ोन आए तो उनको जितनी आपको गालियाँ आती है एक सांस में सब दे दो, फिर एक हल्का सा ब्रेक लो, फिर 100 गालियाँ दे दो, फिर 30 दे दो। आपको मनोरंजन करना है, अटेंड नहीं करना, खुद तक नहीं होना है, उनको मेंटली हैरेस करना है। दे आर द स्मॉल मेजर्स जिनसे उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। प्राइमरली आप जितना टाइम लोगे उतना इजीली आप सिचुएशन को हैंडल कर दो, क्योंकि पैनिक में आप सोच नहीं पाते। दैट इज़ द ओनली थिंग। नॉर्मली फीमेल केसेस में आप जल्दी उसको हाँ वो आपको जल्दी आपको होल्ड अप कर पाते हैं कि भाई नहीं कुछ बुरा हो जाएगा, ये है सोसाइटी, फैमिली एंड ऑल दैट। उसकी वजह से आप जल्दी रिएक्ट करते हो, बावजूद उसकी कि शायद वो मैटर ज़्यादा इजीली हैंडल किया जा सकता है। पेरेंट्स भी एक्ट उसी तरह से करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं। सो वी शुड किल द टाइम इन सच सिचुएशन। Thank you, sir. After all this is explained. So, there are some technical terms as well, which is included as a part of the attacks only. तो जब भी हमारे सिस्टम पे कोई अटैक होता है तो उसके पहले हमारा भी आई थिंक कुछ डिसिप्लिन बनता है, कुछ वर्ड बनता है कि हम अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पहले से सेव करें थोड़ा सा। सो देयर आर डिफरेंट प्राइवेसीज एंड रूल्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो whosoever is building that particular website, तो they have to go through a particular testing. So आप सबको पता होगा there is a penetration testing.
सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रिस्क मिटिगेशन और वी कैन से रिस्क असेसमेंट, जब भी कोई वेबसाइट डेवलप होती है तो उसको उस पर्टिकुलर सिनेरियोज को गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपकी ऐप डेवलप कर रही हूँ, तो ऐप मैंने डेवलप कर लिया, कोडिंग मैंने एवरीथिंग व्हाटएवर इट वाज रिक्वायर्ड, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ डेवलप हो गया। तो उसको पब्लिश करने से पहले डेफिनेटली पब्लिश हम प्ले स्टोर पे करेंगे ताकि उसको नॉर्मल कम्युनिटी है वो डाउनलोड कर सके, और वी कैन यूज ऐप स्टोर फॉर iOS डिवाइसेस। तो वैसी सिचुएशन में हमें पब्लिश करने से पहले जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उसके अंदर हमें अपना प्रॉपर वेबसाइट और वी कैन से ऐप्स को टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें से एक पर्टिकुलर ऐप है, जैसे ऐप नहीं होगी, जैसे बेसिकली कोडिंग प्रोसेस है, दैट इज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आपका एवरी एस्पेक्ट और वी कैन से छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में आपकी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर आपकी यूनिट टेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। यूनिट टेस्ट सेम लाइक जैसे हम 20 मार्क्स की यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, तो सिमिलरली आपका फ्रंट एंड होम पेज में आपके कितने सारे लिंक्स हैं वो सारे टेस्ट हो जाएंगे, एंड देन ऐसे ही करके आपकी एंड में आपका टेस्ट होगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो इन दोनों टेस्टिंग में क्या होता है, एक इंटरफेस में जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो नॉर्मल कम्युनिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, हम उसको कैसे, गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश हो गया, मैंने डाउनलोड कर लिया, तो मेरे को एज अ नॉर्मल पर्सन वो कैसे इंटरफेस शो करेगा, कैसे ग्राफिक्स रहेंगे, कैसा बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, कोई फीडबैक चैनल है या उसमें कुछ एरर आ गया बटन्स का, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर ये ऐप मैं लॉन्च करती हूँ, ऐप हो गया, वेबसाइट हो गई, तो जब वो नॉर्मल कम्युनिटी में जाता है तो इसके ऐसे कौन से फ्लॉज हैं जिसको यूज़ करके अटैकर उस पर अटैक बिल्ड कर सकता है। सो बेसिकली हमारे सिस्टम में कोई ना कोई तो कमी रहेगी ना, तभी तो अटैकर उस पर बिल्डअप कर सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारे सिस्टम में पॉड्स हैं, ठीक है, जैसे HTTP पॉड्स होगी, पॉड नंबर 80 होगी, दे आर ऑलवेज ओपन। तो अटैकर्स nmap का एक पर्टिकुलर देयर इज अ सॉफ्टवेयर, हम भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, nmap नेम इज देयर। सो आप अपने नेटवर्क की ट्रैफिक, इनकमिंग एंड आउटकमिंग ट्रैफिक को उसमें फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं जब मैंने फेसबुक ऑन कर दिया, मैंने nmap को एक्टिव कर दिया, मैंने उसको स्कैनिंग में लगा दी कि दिस इज द फेसबुक एंड मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो उसको स्कैनिंग के दौरान मैंने कौन कौन से पेजेस पे विजिट किया, क्या वो सेफ थे, क्या वो सेफ नहीं थे, या इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर किसी अटैकर ने मेरी पर्टिकुलर जो वीकर पॉइंट है उसको एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं करी। तो बेसिकली जब भी कोई ऐप डेवलप होता है हम एक एथिकल हैकर को हायर कर सकते हैं ताकि वो हमारे एंड से हमारी वेबसाइट को सेफ गार्ड रखे, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको उतना ही बड़ा खतरा होगा रेपुटेशन डेंटेड होने का, रेपुटेशन खराब होने का। तो व्हाट दे जनरली डू, दे हायर अ पर्टिकुलर पर्सन, एथिकल हैकर वीके से, जो उनके बिहाफ पे उन्हीं से पैसे लेके बेसिकली, तो वो आपके अकाउंट को प्रॉपर्ली इस तरह से एक्सेस करता है जैसे एक नॉर्मल हैकर आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। बेसिकली उससे क्या होगा, आपको एक इंटीमेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम कि यस दिस इज अ वीकर पॉइंट और ये है, ऐसे करना है और यहाँ से अटैक हो सकता है। तो बेसिकली आपको तो सेफ गार्ड करना है। एक तो ये प्रोसेस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग इसी का पार्ट है। उसके अलावा रिस्क मिटिगेशन है जिसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क कितने तरह का है, लेट्स सपोज अभी इनकी वेबसाइट हैक हो गई, राइट, तो उन्होंने सिंपली रैंसम अमाउंट पेड कर दी। इसके बजाय वो ये भी कर सकते हैं, सर ने कहा था उनको पता है कि ये डेटा सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, XYZ के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो उनको शॉर्ट आउट भी करेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू परचेज, तो बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं। तो दे हैव टू गेट मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी और एंटिटी ओनली। सो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, बिफोर पेइंग द मनी टू पर्टिकुलर पर्सन हम क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। हम पहले ये एनालाइज करें कि हमारा डेटा कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कितने % डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्या सारा डेटा एक्सेस हो चुका है, ठीक है, या कुछ % हमारा डेटा एक्सेस हो चुका है, ताकि जितना डेटा बचा है एटलीस्ट हम उसको तो पहले सेव कर लें, पता चले एक अमाउंट दी जो बच गया था वो भी हैक हो गया अगली बार और उसकी अमाउंट देनी पड़ रही है। तो परसेंटेज में पहले हमें रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि मेरा रिस्क कहाँ पर आ रहा है, कौन सा मेरा डेटा कितना हैक हो रखा है, उतना हो गया, बाकी अगर बच रहा है तो हम उसको बैकअप कर लेंगे और बैकअप उसी डिवाइस में भी करेंगे, सेपरेट सर्वर में कर सकते हैं, आइसोलेटेड सर्वर में कर सकते हैं, अलग से बैकअप कर लिया। अब रहेगी हमारी मेन बात, तो एवरी कंपनीज आर हैविंग IT सपोर्ट सिस्टम, डेफिनेटली इट इज देयर, इट मस्ट बी देयर। तो आप उनसे जाके कम्युनिकेट करें कि व्हाट दे आर सजेस्टिंग टू यू, कि कितना डेटा है, कितने अमाउंट हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड कि कई बार पैसा देने
करने के बाद भी वो आपका डेटा रिलीज नहीं करते, वो फिर से उसको डेड एंड में छोड़ देते हैं। आप उसको बार बार पे करते रहो, आपको करना पड़ेगा। और बेटर एग्जाम्पल सर ने दिया कि टाइम उनका ज़्यादा लो और उस टाइम के अंदर आप अपने डेटा को अकाउंट्स आप अपने डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लॉग आउट कर दो अपने सेशंस को, और कोशिश करो अगर अपने आप कर सकते हो डिफरेंट आईपीज वगैरह डिफरेंट लोकेशन पर सेटअप कर लो। और सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको साइड बाई साइड कंप्लीट करो। सबसे नेक्स्ट so these were the questions. So how would you teach students to react in a similar scenarios? आप अपने बच्चों को क्या बताओगे इस आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन कि उनको अगर ऐसा कुछ होता तो उनको क्या रिएक्ट करना? तो देखना दिस साइड नाउ लक्ष्मी मैम आपसे सुनना चाहेंगे। बस स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि अपनी प्राइवेट सेटिंग्स को ऑफ करके रखें, ज़्यादा नेट यूज़ ना करें और अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स के साथ छेड़खानी ना करें, उनके पासवर्ड्स वगैरह ना देखें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो छुप के अपने पेरेंट्स के पासवर्ड और मोबाइल के पासवर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा यही है कि बस अपनी पर्सनल डिटेल किसी को भी शेयर ना करें, कोई भी पेरेंट्स की डिटेल अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें बच्चों प्लीज़। मैम ने एक और बहुत बढ़िया पॉइंट बोला पासवर्ड्स, तो हम उस पर भी आएंगे, तो उसकी भी एक वीडियो है वो भी देखेंगे इसमें वीडियो, बिकॉज पासवर्ड आर द बेस्ट। हम अपने लेवल पे तो अपने पासवर्ड तो सेव ही कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले वो तो एक हाई लेवल पे सिक्योरिटी हो जाती है, इंक्रिप्शन हो जाती है। ये बच्चों को हम सिर्फ बता सकते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज दे डोंट नो एंड दे डोंट हैव द एक्सेस टू टेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एवरीथिंग। ये तो हम हाई सिक्योरिटी लेवल पे कर सकते हैं, हम अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा भी स्टेप होता है। ऐसे ही इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम भी होता है, जो सिस्टम को अलर्ट कर देता है एडमिन को पहले कि अटैकर इज गोइंग टू बी ओपन योर पोर्ट, तो आप पहले से उसको रिकवर कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो देयर आर रेड फ्लैग रिकग्नाइजेशन एक्सरसाइज। सो वेरी फर्स्ट इज इमोशनल अपील होती है, हमने वीडियो में देखा था कि इमोशनल अपील होती थी। कैजुअल ट्रस्ट बिल्डिंग था, कैजुअल ट्रस्ट बिल्डिंग था बिकॉज इंटरनेट पे हमने सब कुछ शेयर कर रखा है, हमारे बॉसेस भी हमारे साथ ऐड होते हैं, हम उनको लाइक सपोज हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, तो एवरीवन कैन जज ना। और हमने हमारी वर्किंग प्लेस कौन सी है ऑलरेडी अपडेट करके रखा होता है कि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कितने साल से यहाँ तक वर्क करते हैं। सो अगर आपके ऊपर कोई लाइक वी कैन से इफ एनीवन वांट्स टू हैरेस एनीवन और इफ वेदर इज अ टीचर और स्टूडेंट, तो उसको सिंपली वैसे ही पता चल जाएगा कि हम अभी भी यहीं पे रह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए इट्स वेरी इजी। और मोर ओवर आज के टाइम पे ये भी चल रहा है, हम जो पब्लिकली फोटोग्राफ्स उस पर पेजेस है, स्कूल के पेजेस है, वेबसाइट है, हम उसमें पिक्चर्स अपलोड करते हैं। अगर आप अपने आप को सेफ रख रहे हो, अपने सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर्स नहीं डाल रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आज के टाइम पे ओपनली मार्केटिंग करी जा रही है एआई की, आप पिक्चर अपलोड करो, एआई फाइंड फेसेस करके उस पर्सन का कोई भी अकाउंट है वो थ्रू आउट द इंटरनेट, पहले था बैन हो चुका है, सब आ जाएगा आपके सामने। तो इट्स वेरी इजी टू ओपन समबडीज अकाउंट एंड इट्स वेरी इजी टू रीच समबडीज अकाउंट, पता चल जाएगा कि उसका अकाउंट है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है अनसोलिसिटेड हेल्प ऑफर्स, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेइंग नो एंड वेरीफाइंग थ्रू रिलायबल चैनल्स। अगर समबडी जैसे इनसे भी रैंसम अमाउंट मांगी गई थी, राइट, तो वो एक रिलायबल सोर्सेज से कम्युनिकेट करके ऑल्टरनेटिव भी सोच सकते थे फॉर द वेरी फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पेइंग द मनी, तो नो कह सकते थे, जैसे सर ने बोला था कि टाइम की कोई। सो नेक्स्ट इज क्रिएट क्विक क्लासरूम क्विज। आप एग्जांपल्स ले सकते हो उसमें, जैसे कि व्हाट वुड द विक्टिम हैव डन बिफोर आंसरिंग दी शेडिंग मैसेजेस, तो विक्टिम क्या आंसर कर सकता है, जो भी शेडिंग मैसेज आ रहा है, जो भी मलिशियस मैसेज उसको आ रखा है, उसके पहले एक विक्टिम जो उस चीज़ का बन चुका है, शिकार बन चुका है, वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो आई थिंक इसका आंसर सब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, हम कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है वाई इज़ वेरीफाइंग आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट। किसी की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर ने भी कहा था कि अकाउंट हैक हो गया, तो सर ने मेन स्टेप क्या फॉलो किया, सर ने कंप्लीट कर दी और उनके जितने नोट्स हैं सबको ऑलरेडी अवेयर कर दिया कि दिस अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ताकि वहाँ से कुछ रिक्वेस्ट आए तो हम उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करें। तो जनरली यही होता है ना, हमें कोई रिक्वेस्ट आती है तो फटाफट रिस्पॉन्ड करते हैं। सो की टेकअवेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, फ्रॉड कैन हैपन टू एनीवन, इवन टू दोज हू थिंक दे आर कॉशियस, उनके साथ भी हो सकता है जिनको लगता है कि हम सेफ हैं। नेक्स्ट इज ऑलवेज पॉज द क्वेश्चन, डोंट ट्रस्ट अनसोलिसिटेड
हॉटमेल या फिर आउटलुक की आईडी होगी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हॉटमेल या आउटलुक के स्पैम मैसेजेस में बहुत कुछ आता है। अगर आपने कभी उसको ओपन किया, मेरे को पर्सनली कुछ एक आधे साल के पहले ना बहुत अनसोलिसिटेड मेल्स आती थी बाय सेइंग दैट योर पर्सनल डेटा इज विद अस एंड वी आर गोइंग टू पब्लिश इट टू योर रिलेटिव्स एंड कॉन्टैक्ट्स। भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे जीमेल अकाउंट्स में हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे फोटोग्राफ्स अटैच हो जाती है, स्कैन्स हो जाती है उनकी। सो दे वर पोजिंग दैट कि हमारे पास आपका सारा डेटा है, मोबाइल का पूरा एक्सेस है, आप किसी को कॉन्टैक्ट करोगे तो वी विल कम टू नो एंड उसी टाइम हम आपका डेटा लॉन्च कर देंगे, आपके फ्रेंड्स को भेज देंगे, आपकी फैमिली को शेयर कर देंगे एंड दे वर मेंशनिंग वन व्हाट इट कैन बी, दे आर मेंशनिंग वन लिंक, मलिशियस लिंक डेफिनेटली, कि इस पे आप क्लिक करिए और इसमें हमें पेमेंट दीजिए, नहीं तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, तो उस टाइम क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपडेट होते रहते, उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ना सोचा कि मैंने मेल ओपन करी, लिंक तो चलो मैंने क्लिक नहीं किया, इतना तो पता था कि लिंक पे क्लिक नहीं करना क्योंकि मैं नहीं जानती थी। तो मैंने मेल ओपन करी, मैंने कुछ 5-6 मिनट लगाए होंगे पढ़ने में प्रॉपर्ली कि क्या है, स्कैनिंग वगैरह करने के लिए। एंड दे दिस टाइप ऑफ कंपनीज यूज मैसेज हेडर्स, ईमेल हेडर्स हम जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। उससे ये पता चल जाता है कि किसने आपकी ईमेल खोली, लेट्स सपोज मैंने आपको मेल सेंड करी, अगर मेरे पास ईमेल हेडर है तो आई कम टू नो कि मैंने जिसको मेल भेजी, क्या उसने मेरी ईमेल ओपन करी थी कि नहीं, रीड है कि अनरीड है, और अगर ओपन है तो क्या उसका स्क्रीनशॉट लिया गया या किसी को फॉरवर्ड किया गया और कितना टाइम उस ईमेल में स्पेंड किया गया। अगर मैं टाइम स्पेंड तो दैट मीन्स आई मस्ट बी रीडिंग और मे बी आई एम थिंकिंग समथिंग। सो जब मैंने वो एक बार ईमेल ओपन कर ली ना, कंटिन्यूसली 1 महीने मेरे को वो मेल आती रही बार आती। फिर मैंने सोचा कि मेल मेरे को क्यों कर रहे हैं, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, फिर मैंने उसको ओपन करना बंद कर दिया और उसके बाद कभी मेरे को मेल नहीं। सो दिस इज ऑल्सो, और वहाँ पे उन्होंने कंटेंट इस तरह से बना के लिखा होता है ना, मैसेज उनका ऐसे होता है कि आप सच में सब जुड़ के सच में तुम्हें ठीक हो गया, आपको खुद पे डाउट होना शुरू हो जाएगा कि सच में तुम्हें ठीक होगा। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर, बट हम क्लिक करेंगे फिर जरूर हो जाएगा। सो वी कैन टीच आवर स्टूडेंट लाइक दैट ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज रिपोर्ट, ब्लॉक एंड इन्फॉर्म। आप रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए दूसरों को भी, बच्चों को भी कर सकते हैं हम, ताकि वो अवेयर रहे थोड़ा सा। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स टाइप। बच्चों को अगर आप रिपोर्ट, ब्लॉक का और एक्सप्लेन करने का बताओगे, स्टेप्स बताओगे, तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाएगी और उनको ये पता चल जाएगा कि मेरे को रिस्पॉन्स कैसे करना है। रिस्पॉन्स मेरे को घबराना नहीं है, करना नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बच्चों के साथ ही हो। नेक्स्ट आता है टीच पर्सनल बाउंड्रीज ऑनलाइन, नेवर शेयर सेंसिटिव और वेरिफिकेशन डिटेल कैजुअली। आप अपनी डिटेल्स कैजुअली भी शेयर कर देते इंटरनेट पे, यस दिस इज माय एड्रेस, दिस इज माय नेम, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं रहती हूँ, है ना। तो इशू नॉट बी देयर, बिकॉज आपके सामने वाले इंटरफेस में कौन पर्सन है वी कैन नॉट से, इट कैन बी एनीवन, pretending anyone between you. Next is why people are often the weakest point, or you can say links. Now here it is a human factor कि हम लोगों की तरफ से हम क्यों ज़्यादा हैक हो जाते हैं। सबसे पहले है वीक पासवर्ड्स, क्योंकि हमारे पासवर्ड्स वीक होते हैं। इसमें एक लाइन लिखी है, रीयूज्ड और सिंपल पासवर्ड्स आर इजी टू गेस। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे 5 अकाउंट्स हैं, जीमेल में हमारी 1 से ज़्यादा ही होती है, जनरली 2 या 3 तो नॉर्मली होती है सबकी। तो हम क्या करते हैं, हमें भूल जाते हैं, इधर वी हैव टू राइट इट समवेयर, और भी जनरली क्या करते हैं, या तो उसको सेव कर देंगे या सेव ही पासवर्ड रख देंगे सब जगह। और उससे क्या होगा, अगर एक पे एक्सेस हो गया तो दूसरी 2 और दे सकते हैं। और विजुअलिटी हमने रिकवरी अकाउंट में डाल रखा होता है, तो अगर एक एक्सेस हो गया दूसरी 2 तो हो जाएंगी, और उसके साथ आपने कुछ अगर फेसबुक वगैरह अटैच कर रखी है जो रिकवरी में है तो वो भी गई हाथ से। सोशल इंजीनियरिंग, अटैकर्स ट्रिक यूजर इनटू हैंडिंग ओवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल्स। हैकर्स आपको इस तरह से क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करेंगे कि हमें लगेगा कि नहीं दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन टू अस, एंड वो हमारा डेटा लेके हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द ओनली रीजन वी आर हियर, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम जैसे कंपनीज की बात कर रहे थे, राइट नाउ वी आर यूजिंग लाइक इंटरनेट फैसिलिटी, हम अपना प्राइवेट कम्युनिकेशन करते हैं सिस्टम, लगभग सभी स्कूल्स में अपना एक अलग से डेटाबेस को भी रखा होता है जिसमें सभी टीचर्स की आईडी होती है, सब कुछ होता है। अब वो हैक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी फायरवॉल है, सब कुछ सिक्योरिटी लगा रखी है। बट अगर आपके किसी एम्प्लॉय को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पता, या लेट्स सपोज आपकी लैब में बच्चे हैं, इंटरनेट ओपन है,
और उसमें से किसी बच्चे ने कोई ऐसा पेज खोल लिया जो अनसेलेक्टेड था, मलिशियस में क्लिक कर रहा था, उस एक सिस्टम में वो पूरे नेटवर्क में डेटा स्प्रेड हो सकता है अटैकर्स का। अनट्रेन्ड स्टाफ एम्प्लॉयज अनअवेयर रिस्क में एक्सीडेंटली कॉम्प्रोमाइज इन आपका सिस्टम। मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगी वो मेन इसी के ऊपर ही है, पासवर्ड्स के ऊपर है, और अगर आपका स्टाफ अवेयर नहीं है तो उससे भी हो सकता है अटैक आपको। So secure passwords. So passwords are important as we know. So we should pick the complexity of the passwords. We should use strong password with the combination of uppercase, lowercase, special symbols and characters we can say. And we should avoid the common things because there was a survey conducted by the United States of America and they have launched a list. एक लिस्ट लॉन्च करी थी उन्होंने कि उन्होंने कहा था 50% जो आपका जो डेटा एक्सेस पासवर्ड से हो जाता है, क्योंकि हम जो लोग हैं, हम आज के टाइम पे बहुत सारे गैजेट्स IoT डिवाइस जैसे कोई भी स्मार्ट वॉचेस वगैरह हो गए, तो हम क्या करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो बदलते ही नहीं, अपन नहीं बदलते। हमने घर पे वाईफाई का सेटअप कर लिया, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वही रहने देते हैं। अगर एडमिन है तो एडमिन ही रहने देंगे। 90% एडमिन वाले पासवर्ड सबसे ज़्यादा हैक हो गए। मैंने वो अटैच करना था, एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच नहीं किया, आई थॉट आई एक्सप्लेन इट दैट अभी। सो जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, क्वालिटी हम लिखते हैं ना, फर्स्ट लाइन कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन कॉपी कर देते हैं, हमारा नेम हो गया, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या हमारा कुछ पेट नेम हो गया, निक नेम हो गया हमारा, या हमारा कुछ एड्रेस, ये जो पासवर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं 90% सबसे ज़्यादा एक्सेस यही होता है, ठीक है, क्योंकि अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक यूज़ करेगा या डिक्शनरी अटैक यूज़ करेगा और आपका डेटा फटाफट लीक हो जाएगा। हमें पासवर्ड यूनिक रखना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट्स के लिए हमें मल्टीपल पासवर्ड्स ही यूज़ करने हैं सो दैट हमारा डेटा सेम पासवर्ड की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। स्टोरेज करनी है, हम अपने पासवर्ड्स को एक प्रॉपरली मेथड, प्रॉपरली सिक्योर वे में सेव करके रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप पे अपनी आईडी ओपन कर रही हूँ और मेरा पासवर्ड उस पर सेव है, गूगल पे सेव है, मैं जब भी आईडी लॉगिन करूँगी वहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेगुलर अपडेट्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर इट्स एप्लीकेशन वेदर इट्स अ वेबसाइट, तो कभी भी हमें कोई भी अपडेट्स आती है हमारे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस की, वो हमें टाइमली अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो टाइम टू टाइम अपना एक पैच कोड निकालती है, पैचेस निकालती है, जिसको हम अपडेट बोलते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट होती है जो भी उसके सिस्टम में जो प्रीवियस जो कोई फ्लॉज रहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, जो उनको कंसिडरेशन में आए हैं, वो टाइमली उसको अपडेट कर देते हैं, और हम उसको जब अपडेट करते हैं तो हमारे सिस्टम में चेंज हो जाते हैं। और अगर हम इसको चेंज नहीं करते आपको सम सडन टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे हमारा सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ड्यू टू दैट पैच। सस्पिशियस एक्टिविटी को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? सस्पिशियस लिंक्स आपको आ सकते हैं, जैसे कि बी अवेयर और वेरी ऑफ लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स, जिसको आप नहीं जानते, आपको कुछ भी भेज दें, डोंट रिस्पॉन्ड टू इट। एंड हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है हमारे ईमेल सर्वर की तरफ से कि वो हमेशा स्पैम, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो स्पैम में दिखेगा, वो हमारी मर्जी हम उसको डायरेक्टली इनबॉक्स करते हैं कि नहीं करते, इट विल नोन दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट इज अनयूजुअल कंप्यूटर एक्टिविटीज़। अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल सडनली अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, सडनली फ़ोन आपका हीट होना शुरू हो गया, बैटरी जो नॉर्मल जो होती है कैपेसिटी उससे ज़्यादा ड्रेन होती है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशियल गोइंग ऑन। सो आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करो। इफ़ यू सी एनीथिंग विच इज सीम्स डिफरेंट, तो आप उसको चेंज कर दो वापस, क्योंकि सर ने भी एक पॉइंट बोला था कि हमारे फ़ोन में हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें सिर्फ 50% पता है वो जो हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बैठ के एक सेटिंग्स चेक करें, राइट? तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ 50%. So be alert to any unusual or you can say unusual behavior of your device like slow performance or pop-up windows. अचानक से pop-up window आ रही है या कुछ और ओपन कर रहे हैं, ओपन कुछ और ही हो रहा है। Phishing attempts, learn to identity phishing attempts which tries to trick you into revealing personal information. ये हम already discuss कर चुके हैं कि हमारी personal information कैसे रिवील होती है। Now we will watch one video.